Hello and welcome back. The term constitution is derived from the Latin word constituere, which means to establish or to set up. The term constitution is derived from the Latin word constituere, इसका मतलब होता है to establish या to set up. The Constitution refers to a set of principles which specify the organization and working of the government and the relationship between the government and the people in terms of their rights and duties. क्या ये बात सही है? Yes. Constitution refers to a set of principles which specify the organization and the working of the environment and the relationship between the government and the people in terms of their rights and duties. कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बहुत तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। छः मोटे मोटे तौर पे हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कि पहला है फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, या फिर बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर रूल्स ऑफ द स्टेट, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, या फिर ग्रुंड नॉर्म ऑफ द कंट्री, ग्रुंड नॉर्म ऑफ द कंट्री। ठीक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ द स्टेट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री। अब देखिए, मैं डेफिनेशन अलग अलग स्कॉलर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन अलग अलग दिया है, तो मैं आप डेफिनेशन रीड करूंगा, आपको बताना है कौन सा वो स्कॉलर ने वो डेफिनेशन दिया है। तो इसमें हम लोग कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेंगे, कीवर्ड्स पकड़ करके आप उस स्कॉलर का नाम याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा या किसी भी तरह से पूछ सकता है तो बेटर है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द बॉडी of rules or laws which determine the organization of the government, the distribution of the powers to the various organs of the government, and the general principles on which these powers are to be exercised. ये definition दिया था गिलक्रिस्ट ने। Next definition है the fundamental principles that determine the form of a state are called its constitution. These include the method of which the state is organized, the distribution of its sovereign powers among various organs of government, the scope of manner of exercise of governmental functions, and relation of the government to the people over whom its authority is exercised. ये definition दिया था गेटेल ने, GETTEL. Next definition है the constitution describes the whole system of the government of a country, the collection of rules and establish and regulate or govern the government. This definition was given by Vere, WHEARE, Vere. Next definition है a constitution is a document having set of legal sanctity which sets out the framework and the principal functions of the organs of the government of a state and declares the principles governing the operation of these organs. ये definition दिया था वेड और फिलिप्स ने। अब देखिए, इसका कीवर्ड्स पकड़िए, कीवर्ड से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। कहीं भी आपको ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरल प्रिंसिपल्स दिखे, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या जनरल प्रिंसिपल्स, वो डेफिनेशन दिया है गिलक्रिस्ट ने। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और फॉर्म ऑफ स्टेट अगर दिखेगा तो वो डेफिनेशन दिया है गेटेल ने। फिर कलेक्शन ऑफ रूल्स दिखेगा तो वो डेफिनेशन दिया है वियरे ने, और लीगल सैंक्टिटी दिखेगा तो वेड एंड फिलिप्स ने। याद हो गया? फिर देखो, organization, distribution and general principles, this definition was given by Gilchrist. The fundamental principles and form of a state, this definition was given by Gettel, GETTEL. फिर collection of rules दिखेगा तो Vere, और legal sanctity कहीं दिखेगा तो Wade and Phillips. अब 8 elements of constitutionalism by Louis Henkin. Elements of constitution किसने दिया है? लुइस हैंकिन ने दिया है। कितने एलिमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के? 8 एलिमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। 8 एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बाय लुइस हैंकिन। कैसे याद रखेंगे? PDA RSP CR, PDA RSP CR। तो देखो, PDA मतलब इलेक्शंस का माहौल है, समय है, तो PDA आपको पता है, अखिलेश बोलते रहते हैं PDA PDA। फिर RSP, ये भी एक पार्टी है, और CR याद रख लीजिए। तो PDA RSP और CR। P से पॉपुलर सॉवरेनिटी, डी से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ए से एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, पी से पॉपुलर सॉवरेनिटी, डी से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ए से एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आर से रूल ऑफ लॉ, एस से सेपरेशन ऑफ पावर्स, पी से पुलिस गवर्नड बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल, पुलिस गवर्नड बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल, और सी से सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, और आर से रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री और आर से रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। सो देर आर 8 एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गिवन बाय लुइस हैंकिन, PDA RSP और CR। पी से पॉपुलर सॉवरेनिटी, डी से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ए से एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आर से रूल ऑफ लॉ, एस से सेपरेशन ऑफ पावर, पी से पुलिस गवर्नड बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल, एंड सी से सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, एंड आर से रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। तो इसको रिकैप कर लेते हैं फटाफट।
The term constitution is derived from the Latin word constituere, which means to establish or to set up. Constitution refers to a set of principles which specify the organization and the working of the government and the relationship between the government and the people in terms of their rights and duties. Constitution is described as fundamental law of land, basic law of country, instrument of the government, rules of the state, basic structure of the polity, ground norm of the country. फिर कहीं पे आपको ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या जनरल प्रिंसिपल्स दिख जाए तो वो डेफिनेशन दिया है गिलक्रिस्ट ने. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या फॉर्म ऑफ अ स्टेट दिख जाए तो ये दिया है डेफिनेशन गेटल ने. फिर कलेक्शन ऑफ रूल्स ये दिया है वियरे ने. और लीगल सैंक्टिटी ये दिया है वेड और फिलिप्स ने. 8 एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बाय लुइस हेनकिन. PDA, RSP, CR. P से पॉपुलर सॉवरेनिटी, D से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, A से एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, R से रूल ऑफ लॉ, S से सेपरेशन ऑफ पावर, P से पुलिस गवर्नड बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल, C से सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, R से रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स. इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय.